مسیح کے جلالی القادر اور وفادار نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر سرفراز ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہوں کہ میرے عزیز و ہم خدا کے کلام مقدس کو سیکھیں، سمجھیں اور جانیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کی تمام سچائیوں سے لطف اٹھائیں اور برکت پائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہ زندہ بادشاہوں کے بادشاہ خدائے قدوس، خدائے رحیم، میں شکر گزار ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے، اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی سچائیوں سے بھرنے کو ہے۔ خدا جتنے لوگ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، آج خدا تیرے کلام کی سچائی سے وہ لطف اٹھائیں، جیون پائیں اور کامیابی پائیں اور برکتوں کو ریسیو کرے۔ تیرا زور اور جلالی قوت والا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھا رہے، اور آج خدا بندوں کے خدا تو اپنے عظیم کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو کثرت سے برکت پر برکت دے، اور ساری عزت سارا جلال تیرے قدوس نام یسوع قبل یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آئیے میرے عزیزو، ہم کلام مقدس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقیقی روزہ، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور جانیں۔ آئیے ہم جسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 58 چیپٹر اور اس کی 3:8 کو دیکھیں گے، یعنی 3:8 کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 58 کے 3:8 کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اسی طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسے دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوش نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، آمین۔ میرے چیزوں، یہاں پر ہم روزے کی بابت سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کیا اب تم ایسا روزہ رکھتے ہو جس میں تم خود اپنی خوشی کے طلبگار ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب ہم جب روزہ کے اندر ٹھہرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنا مناسب ہے جس کے سبب سے بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ہماری زندگی سے جائیں۔ اور یہاں پر لکھا بائبل مقدس کے اندر کہ تیرے روزے کے سبب سے تیری صحت کی ترقی ہوگی، تیری روحانی جلد ترقی ہوگی۔ میرے چیزوں، ہم اس چیز پر ذرا دھیان دیں کہ یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو وہ 40 ڈیز بیابان میں گیا اور اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ وہاں پر اس کو پترس اور یوحنا جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہمیں حقیقی روزہ
रखना है, भूखे पेट को सजा देने का मकसद नहीं। हम रोजा रखते हैं, हम अगर शरारत करें, अगर हम झगड़ा करें, रगड़ा करें और बतेरी ऐसी चीजों को अपने जीवन में ले जो नामुनासिब है, तो मेरे चीजों हमारा रोजा नाकाबिले कबूल है। लेकिन लिखा है कि जब हम खुदा के नियम को देखते हैं कि जब हम कलाम के मुताबिक रोजा रखते हैं तो खुदा जो है वो हमें जल्द तरक्की देता है, वो जल्द हमें सरफराज करता है, वो जल्द हमारी मुश्किलों को आसान कर देता है, तब हमारे जीवन में तरक्की होती है। हम देखते हैं कि जब मत्ती रसूल की अंजील के अंदर देखते हैं, उसके 6:16 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि कह रहे हैं कि जब तुम रोजा रखो तो अपने मुंह को धो और अपने सिर में तेल डाल और रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बना, ताकि तुझे लोग रोजादार जाने। आज हमें जरूरत है कि हम जब रोजे में हैं तो हम अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, उसकी तरफ ध्यान लगाए रखें, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखें। कई मरतबा हम दरमियाना ड्यूटी में भी रोजे में होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हमें ड्यूटी के दरमियान में फेस करनी पड़ती है, तो हम या तो फिर बन जाते हैं या फिर परेशानी में कोई बात सोचते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि तू इस तरह से रोजा रखे कि मुझे पसंद आए। खुदा कहते हैं कि अब तू इस तरह से रोजा रख कि जिसके सबब से जंजीरें टूटे, जिसके सबब से बंधन टूटे। भूखे पेट का रोजा नहीं कि तू अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए रखे। इसी तरह मत्ती रसूल की इंजील में भी देखते तो वहां पर भी लिखा कि सिर्फ तू जाने और तेरा आसमानी बाप जो तुझे पशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। और यहां पर भी लिखा है कि वो तेरी सेहत की तरक्की करेगा और तू उस तरह से रोजा रख जिस तरह से तेरा खुदा जो है वो चाहता है। आज तो हमें जरूरत है कि जब हम रोजा रखते हैं, हम रोजा जो है वो थोड़े टाइम का भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, यीशु मसीह की तरफ मुकम्मल तौर पर मतवज्जा होना है और कोशिश करनी है कि उसमें प्रेयर्स में रहें और वो कोई ऐसा काम ना करे जिसके सबब से हमारी जिंदगी में जो है वो प्रॉब्लम्स आए या फिर शरारत आए या फिर गुस्सा आए या फिर झगड़ा रगड़ा आए। इस तरह की तमाम बातें जो है वो मेरे अजीजों हमें बरकत का सबब नहीं बनाती, बल्कि हमारे जीवन के अंदर है। हमें जरूरत है कि हम हकीकी रोजा, जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि या फिर तुम ऐसा रोजा रखते हो कि अपने सर में राख डाले और डांट ओढ़े। मेरे चीजों हमें ये देखना है कि हम इस तरह से जब रोजे में है तो खुदा जो है, हम देखते कि अंबियाओं ने भी रोजा रखा। एलिया का हम देखते हैं कि जब उसने 40 डेज का फास्ट किया तो वहां पर जब मुल्क में बड़ा काल पड़ गया था और खुदा ने उसे हुक्म दिया और जब वो रोजा उस एक बेवा के घर पहुंचा और हम देखते कि उसके हां कुछ भी नहीं था, उसके पास एक मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, लेकिन जब उसने एक फुलका बनाकर उसको दिया और उसी घड़ी उस मुल्क से काल जाता रहा। आज हम फास्ट करते हैं, हमारी जिंदगियों से प्रॉब्लम्स क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरे चीजों हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, इस तरह का रोजा नहीं रखते जो खुदा को पसंद आए। क्योंकि यहां पर लिखा है कि क्या तुम सोचते हो कि मुझे ऐसा रोजा पसंद आएगा? जरूर है कि मेरे जीजों हम अपने खुदावंद की तरफ मतवज्जा हो। हम देखते हैं कि उस वक्त कई मर्तबा दरमियाना ड्यूटी में हमें शैतान आजमाने की कोशिश करता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पहाड़ पर था और वहां पर अबलीस उसे आजमाने के लिए आ गया कि उसके सामने पत्थर पड़ा और उसको कह रहा है कि तू खुदा का बेटा तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए। और हम देखते हैं कि फिर अबलीस उसे हैकल के किंगरे पर खड़ा करने लगा और उसे कहता कि तू मुझे झुककर सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कई मर्तबा दौरानिया रोजा में हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो हम वो अपनी बरकत को खो बैठते हैं, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर लग जाता है। बाइबल में लिखा कि हमारे कान आंख जिस्म का रोजा होता है, हमें कोई बुरी चीज को नहीं देखना, बुरी बात को नहीं सोचना, नहीं सुनना। तो उस सूरत में हमारा खुदा जो है जो पशीदगी में देखता है वो हमें अजर देता है। जरूर है कि मेरे जीजों हम उस तरह से रोजा रखें कि जिस तरह से बाप को पसंद आए। और बाइबल मुकद्दस हमें इसलिए सिखाती है कि हमें इस तरह से रोजा रखना है जिसके सबब से जंजीरें टूटे, बंधन टूटे, मुश्किलात जाती रहे। हमें देखना है कि
जब हम खुदा के हुक्मों के ऊपर ध्यान देते हैं तो खुदा जो है वो हमें बढ़ाता है और हमें ये सिखाता है कि तुम्हारा दिन जो है वो गोया सुबह की रोशनी की मानिंद होगा जब तुम उस तरह से रोजा रखोगे कि जिस तरह से मैं चाहता हूं, मैं पसंद करता हूं। जब तुम उस तरह से रोजा रखोगे तो तुम्हारी रूहानी तरक्की होगी, तुम्हारी सेहत की जल्द तरक्की होगी और फिर निकाह के तेरे लिए जो शुभ निकलेगी वो रौनक की मानिंद होगी और तब तेरा खुदा तुझे सरबुलंद करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हम सब पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते दुआ मांगते कि आज जितनों ने खुदा के कलाम को सुना सीखा, खुदा उन्हें बरकत दे। जिंदा और अब्दी आसमानी जलाली कदूस खुदावंदों के खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज वो हकीकी रोजा के खुदावंद आईनी कानून को जाने और खुदावंदों के खुदा जल्द उनकी सेहत की तरक्की हो, उनकी रूहानी तरक्की हो और उनके फास्ट करने के सबब से जिस मकसद से वो फास्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके बंधन, उनके जुए टूट जाएं और ये हवा पा खुदा वो जिस नजरिया से वो रोजे में आते हैं कि खुदावंदों के खुदा तू उनके लिए आसमान खोले और बंधन टूटे और जुए टूटने पाए और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुलता चला जाए। और यह हवा पा खुदा आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग हकीकी और रोजा को समझे और खुदावंदों के खुदा अपने सर के ऊपर तेल डाले, मुंह को धोएं और पशीदगी में गिरियाजारी करना पसंद करें क्योंकि तू ऐसे लोगों के साथ खुदावंद को खुदा जल्द बातें करता और उनके लिए आसमान खोल देता और उनको बरकत पर बरकत देता है। और खास तौर पर खुदावंदों के खुदा अगर कोई इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, बीमारी, लाचारी, तंगी या किसी नीड में है तो वो यीशु मसीह नासरी उनकी नीड जल्द पूरी होने पाए और हर तरह का कैंसर, हर तरह का शुगर, हर तरह की नपाक बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, मूजी बीमारियां, जोड़ों का गदा दर्द, ट्यूमर्स प्रॉब्लम्स, लिवर्स प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। हर तरह का बहरापन जाए यीशु मसीह नासरी के, आंखों का काला मोतिया, सफेद मोतिया, अबीर सी घड़ी फायर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और तेरे लोग शफा को रिसीव करते, बरकतों को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली बाबरकत कदूस नाम में, आमीन। यकीनन मेरे चीजों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि बतेरों ने रोजे के हकीकी मतलब को जाना। आज खुदावंद उन्हें बरकत पर बरकत दे, जो वो आने वाले 1 डेज के बाद फास्टिंग में जाएं तो खुदावंद उनको बढ़ाए और कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।